Hello students, so today we will learn about PROM. So PROM full form is pre-labor rupture of the membrane. So in this topic we are going to learn about its definition, different terminologies and causes of PROM. This is very important topic to learn because you can apply this practically also. So whenever patient is coming to you with this kind of case, if you want to manage this case, you need to know proper causes and what it is called as for the diagnosis. So that's why keep concentration, and if you have any doubt during the class, you can ask at last. So PROM, pre-labor rupture of the membrane, and it is also called as premature rupture of the membranes. So before starting with the definition, let us understand. See, you can see this picture. This is a picture of gravid uterus. This is fetus, and this bluish line, blue between blue color and pink color, there is one light blue line. It may be visible to you as a whitish line also. This is nothing but the chorion and amnion. So these are amniotic membrane. So here, this is the cervix. So above the cervical canal, this membrane lies, like overlies as, or it overlaps. So whenever there is a dilatation of cervix, or if patient is in active labor, so cervix will dilate and this membrane will expose to the external world, and it is also pressurized by the contractions and this amniotic fluid. So because of this, what will happen? This membrane will rupture, and this membrane will rupture when at the second stage of labor. So whenever there is a term labor and the labor is in second stage, then this membrane will rupture. This is called as normal rupture of membrane. So what happens in PROM? Spontaneous rupture of the membranes anytime beyond the 28 week of pregnancy. मीन्स जब 28 वीक की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कभी भी वो रप्चर होता है, बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, मीन्स पेशेंट को अभी लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है, जो फंडस में जो मसल्स जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होने वाले हैं, वो नहीं हुए हैं, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही ये जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी. और कब होगी? Beyond 28 week. So you need to remember this time limit between 28 week and before onset of labor. This is called as pre-labor rupture of the membrane, PROM. So now next terminology is when membrane rupture beyond 37th week but before the onset of labor is called term PROM. तो ये जो है ये है प्री टर्म और प्री लेबर. इसे प्री टर्म भी कहा जाता है, लेकिन अगर इफ मेम्ब्रेन जो है वो 37 वीक जब कंप्लीट हो जाते हैं, वी नो वेरी वेल कि जब 37 वीक कंप्लीट होते हैं तो बेबी कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, तब वो प्री टर्म लेबर नहीं कहा जाएगा. लेकिन लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, उसका मतलब वो होगा टर्म PROM कि टर्म प्रेगनेंसी है और मेम्ब्रेन लेबर पेन से पहले ही रप्चर हो गई. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है व्हेन इट अकर बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स. 37 वीक कंप्लीट होने से पहले अगर वो रप्चर होता है, देन इट इज कॉल्ड एज प्री टर्म PROM. सो ये हो गई उसकी कॉमन डेफिनेशन. नीचे उसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, प्री टर्म PROM और टर्म PROM. तो सिंपल है, टर्म PROM मींस 37 वीक के बाद रप्चर होना एंड प्री टर्म मींस बिफोर 37 वीक कंप्लीटेड. नेक्स्ट, द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स फॉर मोर देन 24 आवर बिफोर डिलीवरी इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. सो 24 आवर्स से भी ज्यादा अगर मेम्ब्रेन रप्चर्ड रहती है तो उसे हम कहेंगे प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स. तो इंसिडेंसेस की हम बात करें, सो फॉर एक स्पेसिफिक अगर कोई हॉस्पिटल है उसमें एक साल में जितनी भी डिलीवरीज हो रही है, प्रेगनेंसीज है, उसमें 10% केस में ये प्री टर्म और टर्म PROM के चांसेस
रहते हैं। Then causes, this is very important to know causes because causes के अकॉर्डिंग ही आप प्रॉपर डायग्नोस कर पाओगे और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाओगे। सो कॉजेस में फर्स्ट कॉज है इंक्रीज्ड फ्रायबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स। सो व्हाट इज फ्रायबिलिटी? फ्रायबिलिटी मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जो इजीली ब्रेकेबल हो जाता है। जैसे आप कोई सैंड आर्ट आप देखते हो या जो सॉलिड सैंड देखते हो, अगर आप उसे हाथ में पकड़ोगे, थोड़ा सा प्रेस करोगे तो पूरा डिस्पर्स हो जाएगा, तो वो उसकी फ्रायबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ऐसा होता है। कोई पुरानी बुक है, उसके पुराने पेजेस है, तो अगर आप उसे सिंपली टर्न करोगे थोड़ा सा जोर से तो भी वो पेजेस जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत पुराने पेजेस हैं तो उसकी फ्रायबिलिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्रायबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर प्रेशर आता है ऊपर से तो तुरंत वो ब्रेक ओपन हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी यूट्रस जो है वो ज्यादा एक्सपांड होगा, वैसे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे कंपेयर टू प्रीवियस ट्राइमेस्टर्स। तो उससे ऐसे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस में भी ये मेम्ब्रेन जो है वो फ्रायबल होने की वजह से ब्रेक हो जाएगी। अब ये फ्रायबल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, बिकॉज ऑफ अननोन कॉज, बिना किसी रीजन से मेम्ब्रेन जो है वो फ्रायबल होती है। देन डिक्रीज्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि आप किसी भी चीज को पकड़ के ऐसे खींचते हो तो कितने पॉइंट तक आप उसे खींच सकते हो और वो चीज एज इट इज इंटैक्ट रहेगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जब कम हो जाती है तब आप उसे थोड़ा भी खींचते हो तो तुरंत वो ब्रेक हो जाता है। जैसे पेजेस की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है पेपर की, आप पेपर को थोड़ा सा ऐसे खींचोगे तो तुरंत वो फट जाएगा, लेकिन अगर आप रबर को ऐसे करोगे, प्लास्टिक को ऐसे करोगे तो वो तुरंत नहीं फटेगा, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहाँ पे सेम चीज है, अगर मेम्ब्रेन पे थोड़ा भी प्रेशर आएगा, थोड़ा भी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, थोड़ा भी बेबी ऐसे ज्यादा मूव करेगा तो ये मेम्ब्रेन जो है वो फट जाएगी। देन पॉलीहाइड्रोमियास। पॉलीहाइड्रोमियास मींस ये आप पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि बेबी जो है टर्म है लेकिन उसके आसपास यूट्रस में फ्लूइड बहुत ज्यादा है, इसे जिसे हम पॉलीहाइड्रोमियास कहते हैं। टेक्निकल टर्म में हम कहें तो जब 15 AFI जो रहता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, वो अगर 15 से ज्यादा है तो उसे हम पॉलीहाइड्रोमिया कहते हैं, यानी कि लाइकर बहुत ज्यादा होना। तो लाइकर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यूट्रस ओवर एक्सपांड हो जाता है, यूट्रस के जो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल जो रिसेप्टर्स है वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़े से अगर पेशेंट जर्गी रोड पे चला जाए तो उसकी वजह से भी टर्म के बाद या 28 वीक के बाद मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। Then cervical incompetency. So here in this first picture you can see this much area is of normal cervix, which can be around 3 to 4 centimeter, but incompetency में क्या होता है, ये ओनली 2.5 या उससे भी कम रहता है, जिसकी वजह से सर्विक्स कभी भी इजीली डायलेट हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, और डायलेटेशन की वजह से प्रेजेंटिंग पार्ट और सर्विक्स के बीच में मेम्ब्रेन बल्ज होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ने की वजह से भी वो मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। देन मल्टीपल प्रेगनेंसीज। तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज में सेम पॉलीहाइड्रोमिया का रूल अप्लाई होता है कि यूट्रस जो है वो ओवर एक्सपांड हो जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन इजीली रप्चर हो सकती है बिफोर टर्म। देन इन्फेक्शंस, सो कोरियोएमनाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सो इन्फेक्शंस में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी फ्रायबिलिटी बढ़ जाती है, और इन्फेक्शंस की वजह से सिस्टम में TNF फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन फैक्टर 6, 8 एंड 9 जो है वो बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से लेबर पेन ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सेक्रेशन बढ़ाएंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ऑनसेट ऑफ लेबर पेन अर्ली करेगा बिफोर टर्म। देन सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम होना, दिस इज सेम लाइक सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। देन लो BMI, अगर पेशेंट का वेट जो है वो कम है, हाइट एंड वेट का रेशियो जो है वो लो है, दैट इज लेस देन 19 kg/m², ये चीज ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट की बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है। सो सिंपली हम उसे कोरिलेट करें हीमोग्लोबिन के साथ, तो अगर हीमोग्लोबिन लो है पेशेंट का तो उसकी बॉडी में हर एक सेल के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, उस
स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू को हेल्दी रखने के लिए। तो जिसकी वजह से इजीली पेशेंट को इन्फेक्शन लगेगा, इजीली इन्फेक्शन लगेगा तो मेम्ब्रेन की फ्राइबिलिटी बढ़ेगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी और कभी भी वो रप्चर हो जाएगी बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। सो दिस इज अबाउट कॉजेस। So in exam, they may ask you about for 2 marks, what is PROM? So जब भी आपको 2 marks में एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो एक्सप्लेन करनी है, कॉमन डेफिनेशन एंड देन स्पेसिफिक डेफिनेशन, दैट इज प्रीमैच्योर एंड मैच्योर PROM। देन कॉजेस ऑफ PROM भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 कॉजेस जो है वो आपको आंसर कर रहे हैं। और वाइवा के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज वेल एज फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड टू नो द सिवियरिटी ऑफ डिसीज। सो दिस इज द रेफरेंस फ्रॉम DC Datta। थैंक यू।